নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই নয়নজ্যোতি ভূঞাই স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চলি আছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ। চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে এই ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। 4500 খেলুৱৈ সমগ্ৰ দেশৰ 200 বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 4500 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু অসমকে ধৰি এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখিনিত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী আন ৰাজ্যতো এই যি ক্ৰীড়া ইভেণ্ট এই ক্ৰীড়া ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি কেৱল ক্ৰীড়াৰ কথা নকওঁ, কিয়নো মই এইটো কথা কৈছোঁ যে 2024 চনৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনত যিখিনি য়ং ভোটাৰ্ছ আছে, যিবোৰ তথ্য শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পাইছে যে 65%ৰ ওপৰত 65% ওপৰত এইবাৰ য়ং ভোটাৰ্ছে ডিচাইডিং ফেক্টৰ এটা প্লে কৰিব। আপকামিং যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। কোন শাসনত আহিব, কোন শাসনৰ পৰা যাব, সেই গোটেই সিদ্ধান্তটো দেশৰ 65%ৰ ওপৰৰ যিখিনি য়ং ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰিব। যিহেতু এই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত 4500 য়ং খেলুৱৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। কোনোবা কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, কোনোবা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকে দেখি আছে উন্নয়নৰ কি ছবি হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, দুৰ্নীতি হৈছেনে নাই, ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈছেনে নাই, স্ৰজন তোষণ চলিছেনে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দেশৰ যিবোৰ নৈমিত্তিক ঘটনা, এই ঘটনাসমূহৰ সাক্ষী এই 4500 যি খেলুৱৈ তেওঁলোকেও তাৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম য়ং ভোটাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজ্যত যিহেতু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, 200 ইউনিভাৰ্চিটিছে যিহেতু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকেনো কি বিচাৰে। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ নহয়, কিন্তু পলিটিক্সৰ প্ৰতি, ৰাজনীতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা, ৰাজনীতিকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা, বিজেপি, কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা, এই লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ভূমিকা ল'বলৈ গৈ আছে তাৰ এটা পূৰ্বানুমান আমি তেওঁলোকৰ পৰা পাম। আৰু দেশৰ য়ং ভোটাৰ্ছে 65% প্লাছ য়ং ভোটাৰ্ছে কি বিচাৰে, কি ভাবে, সেই এটা আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ পৰা আমি জানিবলৈ পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই য়ং ইণ্ডিয়া কোনফালে গৈ আছে আৰু এই য়ং ভোটাৰ্ছসকলে কি বিচাৰিছে আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে। কাৰণ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন 2024, 4500 খেলুৱৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ। আৰু তেওঁলোকৰ মেজাজটো কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি হিমাচল প্ৰদেশৰ কিছু যুৱতী আছে, খেলুৱৈ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কিন্তু অকণমান খেলৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই লওঁ। এইফালে এখন মেটচ চলি আছে, ভলীবলৰ মেটচ চলি আছে। এইখন কিট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আদমছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইয়াতে এখন মেটচ চলি আছে ভলীবলৰ, আৰু এই মেটচখনো অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। সিফালে এখন পুৰুষৰো মেটচ চলি আছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিবোৰ গ্ৰাউণ্ড আছে সেই গ্ৰাউণ্ডত বিভিন্ন ইভেণ্টৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সেই যি নহওক, আহক এওঁলোকৰ সৈতে আমি পৰিচয় হওঁ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हम स्वागत करते हैं हमारी स्पेशल कवरेज में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अरेंजमेंट्स और बाकी सब कुछ जो भी चीज़ें बहुत अच्छी है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सारी अच्छी अरेंजमेंट्स है, सब कुछ खाना रहना बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ की जो फैसिलिटीज़ एंड ऑल है, ये ऐसा फील कराए कि प्रोफेशनली होता है ना जो एक्चुअल में, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील अच्छा हो रहा है। तुम लोग जीता कि नहीं जीता अभी? सर जीत गए, फर्स्ट मैच एमजी के साथ था। यस। आप कोच है क्या? वॉलीबॉल कोच है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, पूरा माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ऑल ओवर जितनी फैसिलिटी है बहुत गुड है, मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं। आप लोग ओरिजिनली हिमाचल से हो, किस किस को वोटिंग ये जो आया है, किसका वोटिंग लिस्ट में नाम आया है? सब थोड़ा राइज योर हैंड्स प्लीज। ओके, তো এই চাৰিগৰাকী আহিছে, এওঁতো আহিছে প্ৰশিক্ষক হিচাপেও আছে। আমি অকণমান কিছু কথা এওঁলোকৰ পৰা পাতিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব, তথাপিও জানিব বিচাৰিছোঁ। आपसे थोड़ा ये देखो जानना चाहेंगे कि इस बार जो इलेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे जो गर्ल्स वोटर्स है, जो फीमेल्स वोटर्स है, दे विल प्ले वाइटल रोल। और दूसरा बात यह है कि जो अभी टोटल वोटर्स ऑफ इंडिया, कंट्री का जितना वोटर्स है, मोर देन 65% वोटर्स आर यंग वोटर्स। तो तुम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या देख रहे हो, इंडिया इज चेंजिंग और नॉट? यस सर, इंडिया में काफ़ी चेंज आया है जब से बीजेपी आई है, और मोदी जी के हम तो बहुत ज़्यादा वो है, हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे, आगे बाकी का पता नहीं सर, पूछ लो इनसे।
मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करूंगी सर। अच्छा ही कर रहे हैं सर वो, मेरे लिए तो वो अच्छा कर रहे हैं इंडिया में। और बाकी सर अब सबकी अलग अलग वो होती है, हम किसी को नहीं बोल सकते। और अब पूछो सर इनसे। तुम बोलो। जो भी गवर्नमेंट अच्छी करेगी हम उसी के साथ में, हम पर्टिकुलर किसी एक गवर्नमेंट के साथ में नहीं है, बीजेपी कांग्रेस या ऐसा कुछ नहीं है, हम पर्टिकुलरली किसी के साथ नहीं है, बट जो भी अच्छा करेगा, जो हमारे लिए अच्छा करेगा, सबके लिए अच्छा करेगा, हम उसी के साथ में और वो हैं। बीजेपी अच्छा कर रही है। क्या क्या बीजेपी तुम्हें क्या लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे पर? जब से बीजेपी आई है स्पोर्ट्स में, खेलो इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया, और खेलो इंडिया स्कीम में भी काफ़ी बच्चे हैं सर, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है काफ़ी बच्चों को। एक साल में वो 1,20,000 वो करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। आप नहीं हो, बट दी स्पोर्ट्स के लिए बता रही हूँ मैं, काफ़ी चेंजेस आए स्पोर्ट्स में। पहले ये वाला सर खेलो यूनिवर्सिटी कभी नहीं होती थी, खेलो इंडिया तब स्टार्ट हुआ जब बीजेपी आई है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब से ये तो पूरा पक्का बीजेपी का सपोर्टर है। हम बीजेपी के, बाकी भी सारी बीजेपी। तुमसे जानना चाहता हूँ, देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या जितना वादे बीजेपी ने किया था पिछले 10 साल में? नहीं सर, मैं उतना मतलब पॉलिटिकली मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे उतना मतलब इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या वादे किए थे या वो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, जो भी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है हम उसी के साथ में हैं। गरीबी कम हो रहा है क्या देश से, या करप्शन नहीं हो रहा है क्या? करप्शन हो रहा है सर, थोड़ा बहुत तो होता है। अब थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट भी खाती है सर, ऊपर से सही आता है। अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है सर। करप्शन में भी थोड़ा कर ही रहे होगे सर, झोल मोल तो होता ही है हर एक जिसमें सर। इसमें भी हो ही रहा होगा सर, इसमें भी हो ही रहा होगा। तुम्हें कैसा लग रहा है, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, कैसा तुम्हारा नजरिया? कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसके साथ है। और रही बात डेवलपमेंट की, कहीं कहीं पीछे भी है हमारा देश, कहीं कहीं आगे भी है। और रही बात फॉरेन कनेक्शंस बनाने की, उसमें बहुत आगे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे है देश हमारा, अभी भी है, बहुत से डेवलपमेंट है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं कमियां बहुत सी है, जो ऑब्वियसली हमें भी क्या बोलते हैं, एक तरह से वो है कि भरोसा है कि जो भी आएगी अगर वो हमारा वेलफेयर सोचेगी तो हमारा अच्छा ही सोचे, क्योंकि बेटियां कर रही है तो कर रही है, अच्छा खेलेगी, बढ़िया खेलेगी, तो वही है। बीजेपी को छोड़ के क्या लग रहा है कि कांग्रेस क्या नहीं आ सकता है क्या इस बार, जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है दूसरे पार्टीज को लेके? क्या ऑपोजिशन का कितना जोर देखते हो तुम? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी जोर नहीं दे रही है या कोई और पार्टी नहीं जोर दे रही है, सभी है। लेकिन ऐसा है कि भाई जो लोगों का वो होता है ना नज़रिया, वो एक तरफ चले जाता है। जैसे अब लोगों का नज़रिया ये है कि भाई हाँ मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, हाँ मोदी है तो मुमकिन है ये। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है, अगर आप उनको भी मौका दोगे, उन्हें भी चांस दोगे, तो क्या पता वो भी आपके लिए डेवलप करे। लेकिन हाँ अगर मोदी जी कर रहे हैं हमारा, तो कोई कमी नहीं है, तो फिर तो क्यों ना हम उनको वोट करें। लेकिन चांस दिया था बट कुछ नहीं हुआ। चांस सबको मिलता है, चांस मिलने का होता है, और उस टाइम पे सिचुएशन क्या होती है ऐसा नहीं है। अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कितनी नीचे थी, डाउन थी, लेकिन इकोनॉमी उस टाइम पे उस आदमी ने बढ़ाई है, उस टाइम पे हुआ है, तभी मोदी जी भी आगे डेवलप कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ या फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ। हमारे लिए तो ये है, हमें जो हमारे को वो देगा, एडवांटेज देगा हर चीज़ में, हमें जो फैसिलिटीज़ देंगे उसके हिसाब से। लेकिन हाँ मैं मोदी के साथ भी हूँ और कांग्रेस के साथ भी हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा, बढ़िया अच्छा जवाब दिया। नहीं मैं आपसे भी जानना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए इस बार जो लेडी वोटर्स है, फीमेल वोटर्स इंक्रीज़ हो रहा है देश में, तो कैसा लग रहा है कि आप कैसे देखते हो कि कितना सुरक्षित है नारी? क्योंकि कभी कभी अपोजिशन ये भी बात उठाते हैं कि यहाँ पे नारी का जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो इतना नहीं है, मोदी सरकार यहाँ पे काम थोड़ा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ अपोजिशन यहाँ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित है? मोदी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सपोर्ट को, थोड़ा लड़कियों को खुद भी बोल्ड होना चाहिए इस मैटर में कि भी ऐसा कुछ कई बार कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब बहुत मुद्दे बड़े डेंजरस हो जाते हैं लाइफ में, बट उसके लिए खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए गर्ल्स को। मेरा तो ये है। आप तो स्ट्रांग है, देख के लगता है आपको। पूरा स्ट्रांग है सर, मतलब स्ट्रांग गट फीलिंग होनी चाहिए लड़कियों में, मतलब किसी को मतलब कम नहीं समझना चाहिए। ये है मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो देश का माहौल कैसा है आपके हिसाब से, कैसे देख रहे हैं? क्या देश आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, और कुछ करना बाकी है? बस करप्शन थोड़ा कम होना चाहिए सर, वो देख रहे हैं चीज़ है। हाँ वो चीज़ बहुत है, जैसे आप देखो गेम में लगा दो, बहुत कुछ करप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। राफेल डील का एक करप्शन भी आया था यहाँ पे।
कुछ एलिगेशंस आए थे ये राफेल के खरीदने और इसमें कुछ ऐसा, सर ये थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, इंजन सर वो ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन खेलने के लिए मिल जाए बस वही बहुत होता है। वो उसमें हमें फैसिलिटीज़ दो, आप रहने का, खाने का, पीने का, हमारे लिए जो हमारे लिए उसके बाद अचीवमेंट्स में देते हैं, बस वही मिलना चाहिए। देखिए सरकार तो अपने हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती है, वैकेंसीज़ निकाले वही चीज़ें होती है, जॉब्स मिले बच्चों को, और चाहिए क्या होता है। हमारे जो अनएम्प्लॉयड प्लेयर्स है बहुत है, बस खेल रहे अपने को घिस रहे हैं, उसके लिए मिले कुछ। हाँ, जब वो मिलना चाहिए। इतना दे रहे हैं तो उन्हें भी कुछ देना चाहिए ना हमें, ऑब्वियसली। तो वही है, हम तो देश का नाम ही कर रहे हो एक तरह से रोशन। लास्ट में देखो, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि तुम लोग गेम्स में हो, अच्छा खेल रहे हो, देश के लिए नाम करो, ओलंपिक में जाओ, मेडल्स आओ, इसके लिए हमारा शुभकामना हमेशा तुम्हारा साथ है। लेकिन आम आदमियों का हालत तुम्हें कैसा, तुम्हारा नज़रिए से तुम कैसे देखते हो, जो आम आदमी है? देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो जो चल रहा है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन उसी डेवलपमेंट के ऊपर ना नीचे का किसी को कुछ नहीं पता है। नीचे भी कई गरीब है जो क्या कहते हैं, जिनके पास झोपड़ियाँ भी नहीं है, किसी के पास लिटरली वो उसमें सो रहे हैं, फुटपाथ में सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबी बहुत है, पहले से अकॉर्डिंग गरीबी बहुत कम हो चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ और भी खुलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं गाँव में अभी भी ऐसा है कि भाई जाति प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ें खुलेगी, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत चीज़ें होनी है। अगर आप मोदी को करेंगे तो और भी बढ़ेगा, कांग्रेस को करेंगे, वो भी चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन देखते हैं आगे डेवलपमेंट, हमें तो डेवलपमेंट से, आम आदमी भी क्या चाहता है, वो भी उसी को वोट करना चाहता है ना जो उनके लिए भला करे। आम आदमी ऐसा तो नहीं चाहता कि हमें लाखों करोड़ों दो या फिर कुछ, बस एक सिंपल सी लाइफ ही चाहता है, वो भी खुशी से। लास्ट में हम आप तुमसे जानना चाहेंगे कि देखो, तुम बीजेपी को प्यार करते हो, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, और ठीक है कोई नहीं, लेकिन ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं बीजेपी। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ओपोजिशन देखो ना ओपोजिशन थोड़ा ऐसा यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी रिली मैं किसी का साइड में नहीं, मैं जैसे इन लोगों ने बोला कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दूंगा। सर अभी बीजेपी अच्छा काम करी तो मैंने इसलिए बोला, और स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा काम बीजेपी ही करी है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कुछ ऐसा एलिगेशन है कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म के नाम, हाँ ये तो हमने भी सुना। जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा योगी मोदी करते रहते हैं सर, वो हो ही रहा है कि राम मंदिर बना दिया, फिर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वो तो सर अपना वो है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। बट मैं स्पोर्ट्स के से बड़ी सबसे अच्छा मुझे यही लगा बीजेपी का, कि अब कांग्रेस आई थी पहले, अब उनकी अलग स्कीम थी सर, वो कोई और नेशनल खिलाते थे, अभी उन्होंने खेलो इंडिया शुरू किया। धर्म की बात करें तो धर्म में ऐसा नहीं है, इंडिया हमारा सेकुलर वो है, कंट्री सेकुलर है, यहाँ पे सब कुछ है। आपके पास हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, सब मिलेगा, आपको सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी सेकुलर सबको लेके ही अभी छेड़खानी हो रहा है। हाँ, ये है कि भाई सब बोल रहे हैं कि भाई तुम सनातन धर्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, वैसे तैसे मोदी ज़्यादा सनातन धर्म को है, मुसलमान को ज़्यादा वो नहीं। आपको कुछ नहीं पता है अंदर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बीजेपी में ऐसे है कि वो मुसलमान है, क्या वो उनको वोट नहीं ले रहे हैं या फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ होती है सर। देखिए हेटर्स भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं, बस डिपेंड करता है आपका नज़रिया क्या है उनके प्रति। ऐसा नहीं है, देखिए अगर हमारा ये श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या में, कहीं ना कहीं मस्जिद भी तो बन ही रही है, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो मोदी जी अगर करने के लिए तो फिर सारे मस्जिदों को निकाल देते, अगर इतना ही होता। रही मंदिर तो बहुत बड़ा है इंडिया में, बहुत ही, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत है, भारत देश है, इंडिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो जायज़ था कि भाई हिंदू के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही ज़रूरी था। इस साइड में तो मैं मणिपुर को वो करना चाहूँगी। मणिपुर में बहुत बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है अभी आजकल। उस साइड भी मैं, मोदी जी अगर मेरा देखे ये पता नहीं देखेंगे कि नहीं, लेकिन प्लीज़ एक उसी को लेके तो नाराज़ है ओपोजिशन की मोदी मणिपुर के इशू पर एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। बिल्कुल मैं भी उस बात को लेके हैरान हूँ। मोदी जी छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश का हिस्सा है मणिपुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सपोर्टिव वो है, लेकिन पता नहीं मोदी जी उस चीज़ को लेके क्यों नहीं कर रहे, उन तक पहुंच नहीं रही है बात। ऐसा तो है नहीं कि पहुंच नहीं रही होगी, सब कुछ पता है। वो G20 ये चीज़ों में करने में व्यस्त थे, ऐसा नहीं है। मणिपुर हमारे एक देश का हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसीलिए मणिपुर भी देखना चाहिए उन्हें। बहुत अच्छा बात बताया तुमने, अच्छा लगा तुमसे बात करके। आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जो होगा वो होगा, पॉलिटिक्स वो अपनी जगह पे है, खेल अपनी जगह पे है, और এইসকল যুৱ ভোটাৰৰ ওচৰৰ পৰা জানিলোঁ যে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে আৰু বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে। UCCক লৈ, ধৰ্মৰ ৰাজনীতিক লৈ, মণিপুৰ প্ৰসংগত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ,
দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এওঁলোকৰ মন্তব্যৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ বঁটা কেনেকুৱাকৈ কোনফালে গৈ আছে इंडिया बढ़ेगा इंडिया খেলেগা ইণ্ডিয়া বঢ়েগা ইণ্ডিয়া वी आर फ्रॉम कर्नाटका मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ स्टडी में मैंगलोर यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल फ्रॉम तमिलनाडु तमिलनाडु Saram University, Chennai. Mainly, I went from Uttar Pradesh. What about Narendra Modi? What about Narendra Modi? This scheme is very, very much good for youth and for the upgoing children, those who are going to play Khelo India. आप कहाँ से हो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको काफ़ी अच्छा लगा ये मतलब काफ़ी देखने को अच्छा दिखा हमें। अभी लोकसभा आ रहा है हाँ जी, हाँ जी। तो किसको सपोर्ट करोगे बीजेपी और कांग्रेस मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। क्यों करेंगे वो मतलब अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं हमें, तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे। कौन आएगा पावर पे देखो जैसे अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उस हिसाब से तो मेरे को बीजेपी लग रही है यहाँ आने वाली है और एक्चुअली हम किसी और स्टेट से तो हम ज़्यादा हमें बाकी स्टेट्स का इतनी नॉलेज नहीं है पर मेरे हिसाब से बीजेपी ही आएगी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा यहाँ पे चला रहा है, यहाँ पे चल के गया है, अभी पूरा भारत में अभी दौड़ रहा है, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर इतना विश्वास नहीं है क्या? देखो राहुल गांधी अभी चल रहा है, राहुल गांधी पहले भी चल रहा था, तो मतलब चलने से तो कुछ होगा नहीं, देश तो चलेगा नहीं, आगे चलना ही होता तो हम यूथ कितने चल जाते हैं करने देश चलाने के लिए, चलने से अगर देश चल जाता तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कैसे होगा फिर। कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो? मैं JNK से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। तुम्हें कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कोई सा भी ना, हाँ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं तो बोल दो। नहीं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी नहीं, नहीं लगता है? मोदी लगता है। क्यों मोदी क्यों? मोदी सरकार जिंदाबाद है अपने तो, अपने वहाँ तो। राहुल गांधी को कोई अच्छा नहीं लगता है? नहीं उसकी नहीं यार, इतनी अच्छी नहीं है उसकी। उत्तर प्रदेश से अमेठी से वो हार चुका है। अच्छा फिर फिर क्या करें, वो तो उसकी है ना, हारेगा जीतेगा। मेरी मर्जी, हर आदमी का अलग अलग होता है, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है। नरेंद्र मोदी हाँ इस बार तीसरे बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? बनेगा बनेगा, देख लियो। JN यूनिवर्सिटी बैंगलोर। मोदी ऑफ कोर्स मोदी। Why Modi? वही मोदी सब अच्छा करा रहे हैं ना इतना, इसीलिए। 2024 election is coming. So Modi or Rahul Gandhi? Modi. 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 Obviously Modi. 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 मोदी को इतना क्यों आप लोग चाहते हो? She want to say something. हमारे देश का विकास कर रहा है, इसलिए। আৰু এওঁলোক হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা অহা, তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু মইনো কি ক'ম, মই এটা ইয়াতে অপিনিয়ন পল লৈ আছোঁ এই খেলো ইণ্ডিয়া 2024ৰ ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ, আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যিখিনি অপিনিয়ন তেওঁলোকে দিছে, যিখিনি মতামত তেওঁলোকে দিছে, তাৰ মতামতৰ আধাৰত আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আৰু এওঁলোক আহিছে ৰাজস্থানৰ পৰা। মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী নেক্সট 2024 ইলেকশ্যন। मोदी। वाई? क्योंकि मोदी ने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, जैसे कि पढ़ाई के मामले में, खेल के मामले में। राहुल गांधी भी अच्छा है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए मोदी बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से। राहुल गांधी क्यों नहीं होगा? राहुल गांधी मतलब इतना एक तो ध्यान नहीं देते वो स्पोर्ट्स की तरफ, मतलब आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ गरीबी की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने मतलब खुद के लिए ना, खुद के इम्प्रूव के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चों की तरफ और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं करते। So इसलिए मोदी बेस्ट। According to your point of view, whom you going to support, Narendra Modi or Rahul Gandhi? I don't know. I don't watch news उतना, तो I won't comment. But yeah, I like Modi ज़्यादा. That's Then it. Rahul Gandhi. Yeah. দেশৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনটোৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকৰ মেজাজ কেনেকুৱা আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ সৈতে আৰু কেইগৰাকীমান বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ভাৰত তেওঁলোকে দেখি আছে অনাগত দিনত, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। कहाँ से आए हो? मैं सर हरियाणा से। हरियाणा से। आप कहाँ से हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब। आप कहाँ से हो? अमरावती महाराष्ट्र, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। ओके।
आप लोग कहाँ से हो? संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ. अमरावती विद्यापीठ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा কিছু ইয়াতে যুৱক যুৱতী আছে. कैसा लग रहा है गुवाहाटी? बहुत अच्छा लग रहा है. हम अभी सेकंड टाइम आए हैं यहाँ पे. अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग सीनियर नेशनल खेलने आए थे और अभी हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है दोबारा से, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैं ईपी वुमेन्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ. कैसा अभी खेल होके गया कि मैच हुआ? अभी मेरे पूल्स हो गए हैं, अभी डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टार्ट होने वाला है. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके. काफ़ी प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं. काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे. बहुत अच्छा लगा आके. कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि इधर जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी सी है. असम गवर्नमेंट ने और जो फेडरेशन है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है. अकोमोडेशन अच्छा है, खाना अच्छा है और जो आप प्लेग्राउंड देख रहे हो ये तो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने. तो मतलब ऑलमोस्ट सभी अच्छा है. हाँ जी. कैसा लग रहा है आपको? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है. हमारा पहली बार सिलेक्शन हुआ है खेलो इंडिया में, हमारी टीम भी, और मैं कोच हूँ अमरावती महाराष्ट्र टीम का, और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है सर. अच्छा, वोटिंग राइट्स किस किस का है? थोड़ा रेज योर हैंड्स प्लीज. वोटिंग राइट्स किस किस का है? वोटिंग राइट्स 1 2 3 4 5 6. आप तुम्हारा नहीं है? 18+ नहीं हो अभी? हो लेकिन अप्लाई किया कि नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया. कभी तो दोगे वोट ना. तो अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा हम ऐसे ही, क्योंकि ये बात क्यों हम बताना चाहते हैं कि देखिए हम कॉन्शियस जनरेशन है, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है. सभी हम यंग जनरेशन है, हम बदलता हुआ इंडिया को देखना चाहते हैं. तो सिंपली मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं पूछूंगा, इंडिया बदल रहा है, कैसा तुम्हें महसूस होता है? एज एन इंडियन हमें बहुत अच्छा महसूस होता है एंड इंडिया पहले से काफ़ी डेवलप हुआ है. लेकिन स्पोर्ट्स में और भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है. जितना इम्पोर्टेंस पढ़ाई को देते हैं उतना गेम्स को भी देना चाहिए. एंड अगर गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देगी तो इंडिया में, मतलब इंडिया आगे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर और भी मेडल्स लेकर आ सकता है. इस बार इलेक्शन आ रहा है, 2024 लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, मोदी हैट्रिक कर सकता है क्या? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती. फिर भी तुम कैसे देखते हो? एक्चुअली मेरे ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस है, तो मैं ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती. पंजाब में आप सरकार अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, पंजाब में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. तो इस बार आप थोड़ा आएंगे पावर में या कॉन्टेस्ट में आएंगे लोकसभा चुनाव में, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने जैसा बोला, मैं मेरे सिर्फ ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रही हूँ. मेरा ये पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो आई कांट से एनीथिंग. तो भारत, तुम ठीक है पॉलिटिक्स का बात नहीं पूछेंगे, आप देख रहे कि थोड़ा चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो रहा है, आपने बोला, तो किस किस तुम्हें ऐसा लगता है कि कौन कौन सी वो सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सी वो विषय है जहाँ पे तुम्हें चेंजेस नज़र आ रहा है? अभी जैसे हमारा पहले कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हमें ज़्यादा नहीं एक्सपोजर मिलता था, अभी हमें स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा इंटरनेशनल कैंप्स और ट्रेनिंग के लिए मिल रहा है. तो वो चेंज है एक एथलीट के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं उससे खुश हूँ. ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल, कैसा देख रहे हैं देश का? माहौल देश का तो अच्छा है चालू अभी, लेकिन फिर भी देखते हैं तीसरी बार मोदी आती है या नहीं आती है, तो मेरे को तो नहीं लगता अभी. हाँ, वो जो अपोजिशन का जो गठबंधन बनाया गया है, वो लोग क्या चैलेंज कर पाएंगे मोदी को? चैलेंज करेंगे इस बार, जरूर चैलेंज करेंगे. तो पूरा लड़ाई होगा? हाँ, पूरा इस बार लड़ाई होगा अभी, अच्छा लड़ाई होगा. बीजेपी के लिए इतना इजी नहीं होगा? इजी नहीं होगा अभी, नहीं होगा इजी, और इजी होना भी नहीं चाहिए. कैसे जैसे चालू है अभी, इधर का उधर, उधर का इधर, सब गलत हो रहा है. इसलिए चेंज होना चाहिए थोड़ा एकदम एक हाथ में नहीं होना, पूरा कुछ ना कुछ. और सबसे ज़्यादा क्या है, नौकरी, जो गवर्नमेंट नौकरी है वो कम हो गई है, इसलिए ये कुछ तो भी अलग होना चाहिए थोड़ा. तो जो मोदी अभी गारंटी दे रहा है कि गारंटी का एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है यहाँ पे, जैसे साइनिंग इंडिया था वो वाजपेयी के दिनों में, तो अभी मोदी का गारंटी चल रहा है. तो इस बार आपको क्या लगता है, गारंटी आएगा काम में इलेक्शन में? सर गारंटी तो 10 साल से दे रहे हैं, वो तो कुछ नहीं हुआ. हाँ, सही है ना. तो गारंटी देने से कुछ नहीं होता सर, कुछ दिखाओ, बराबर ना. कुछ दिखेगा तभी तो बिकेगा ना. वो चालू है, वो होना चाहिए बस. गारंटी तो राहुल गांधी ने भी दी है ना, फिर नौकरियाँ देने का, ये देने का. अभी कैसा गारंटी नहीं, तुम रिजल्ट दो, रिजल्ट होना बस, गारंटी नहीं होना, अभी रिजल्ट होना है. अच्छा बात बोला आपने, अच्छा लगा. तो कैसा महसूस हो रहा है, इंडिया इज चेंजिंग? बिल्कुल सर, चेंज हो रहा है सर. काफ़ी अच्छा अपग्रेड हो रहा है, हर गेम में भी हो रहा है, इस चीज़ में भी हो रहा है. काफ़ी अच्छा हो रहा है. इस बार आएंगे पावर में मोदी 3 बार लगातार? सर कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं पता सर. पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी. फार्मर्स के लिए भी आना चाहिए. फार्मर्स के बिना कुछ भी नहीं है. नो फार्मर्स नो फूड. अभी तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा. हाँ, और ये दूसरी बार हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए. आपको कैसा लगता है, फार्मर्स का इशू अभी बता रहा है
यहाँ पे नौकरी का इशू भी कोई बता रहा है, तो आपको देश का माहौल कैसा महसूस होता है आपको? उसमें सर हम थोड़ा सा न्यूज़ से मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे को इतना पता नहीं है थोड़ा, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स का ही है तो हम स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा वो रहते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी है अभी तक तो बाकी सब ठीक ही चल रहा है। आप कहाँ से रिप्रेजेंट करते हो? हरियाणा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा से। और आप? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा का कैसा देखे हो, माहौल कैसा है अभी? स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत आगे है। वो तो आगे ही है, वो हम सभी में हम हरियाणा को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हरियाणा बहुत ज़्यादा दे रही है, दैट्स वाई द प्लेयर इज़ ग्रोइंग अप। और खेलो इंडिया जो है वो तो इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, लाइक किट्स से लेके कंपटीशन से लेके ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडिंग हियर। तो देखिए हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 में, और इस बार 65% से ऊपर युवा वोटर्स है, वो लोग डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल कौन इसमें दिल्ली का दरबार में कौन बैठेगा, वो डिसाइड करेंगे। तो एज ए यंग वोटर आपको क्या लगता है, क्या होने जा रहा है इस बार, और इंडिया का जो पिक्चर है वो पिक्चर आपको कैसा दिख रहा है? पिक्चर तो अभी तक ब्राइट ही चल रहा है, पर जैसे अभी बोला कि नो फार्मर नो फूड, उसके अकॉर्डिंग जो अभी डिसीज़न लिया जाएगा उस पर इलेक्शंस का भी बेस्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग अब चेंज होगी ना। अगर वो इलेक्शन के थ्रू या फिर अभी वो फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी है, तो उसके बाद ही कोई रिजल्ट एक युवा भी ले पाएगा, नहीं तो सारे कंफ्यूज तो हैं, नो वन नो कि क्या होगा। और ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स का बात करें तो रेसलर्स का वहाँ पे एक स्ट्राइक भी चल रहा था दिल्ली में, वो कुछ थोड़ा इशू था बट वो हो गया था क्लियर। लेकिन अभी जो है जो पहले था स्पोर्ट्स का वो कुछ अलग था, आज के टाइम में काफ़ी डेवलप हो गया है और काफ़ी इक्विपमेंट जो पहले नहीं ले पाते थे अब ये प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, और काफ़ी सारी है। मेरे ख्याल से बीजेपी अच्छा है स्पोर्ट्स में, और भी कई क्षेत्र में बढ़िया है। और थोड़ा फार्मर का है वो तो चलो वो शॉर्ट आउट वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हमें हमारा स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स बढ़िया सपोर्ट कर रही है, और मेरे हिसाब से तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और आनी भी चाहिए बीजेपी। मोदी हैट्रिक करेगा? यस 101% करेगा जी। वो स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्कीम्स उसके थ्रू निकल रही है जिसके थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग। सो कांग्रेस का, राहुल गांधी का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं होगा? नहीं, हमारे हरियाणा में तो नहीं है, और जगह का नहीं पता, जो साउथ साइड में है उधर तो उनकी बनी गई है सरकार, लेकिन जहाँ तक है वो 300 पार कह रही थी शायद, ऐसा कुछ उससे भी ऊपर जाएगी जहाँ तक है अपना। तुम्हें क्या लगता है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन सब का जो गठबंधन हो रहा है? गठबंधन का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होगा, वो सब अब लास्ट में ऐसा होगा गठबंधन टूटेगा और जो सीट आनी चाहिए वो सोचेंगे। अभी यूपी में ही देख लो, अपना मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे हैं, मुलायम सिंह को सीटों का बंटवारा उनका मतलब हो ही नहीं पा रहा डिसाइड कि भाई शहरा किस पे बंधेगा। तो मेरे हिसाब से गठबंधन फेल है, बीजेपी आएगी, 101% आएगी। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए, और अच्छी तरह से यहाँ पे एंजॉय कीजिए, यहाँ का पूरा माहौल का यहाँ पे एंजॉय कीजिए, और हम आपको शुक्रिया बोलते हैं इस बार। और ये आছিলে এইসকল যুৱক যুৱতী, কোনোবাই হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে, কোনোবা নতুন দিল্লীৰ পৰা আহিছে, কোনোবা পঞ্জাবৰ পৰা আহিছে, কোনোবা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱটো ইয়াত ব্যক্ত কৰিছে যে কি দেখি আছে তেওঁলোকে, ভাৰতখন কেনেকুৱা হৈ আছে, দেশে উন্নতি কৰিছে নে দেশে উন্নতি কৰিব পৰা নাই। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। অনুষ্ঠানত আন এটা চমু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। বাহিৰৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ইয়াতে অপিনিয়ন দিছে, কাৰণ এইবাৰ দেশত যি নিৰ্বাচন আহি আছে 2024, তাত য়াং ভোটাৰ্ছে কিন্তু এটা ডিচাইডিং ফেক্টৰ গ্ৰহণ কৰিব। অসমৰ খেলুৱৈৰ উপস্থিতি আমি অত্যন্ত সেৰেঙা পাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্ৰ 6জন খেলুৱৈয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাহিৰে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। বহুখিনি ইয়াতে হয়তো টেকনিকেল প্ৰব্লেমছ থাকি গ'ল, বহুখিনি হয়তো যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ কৰিব লাগিছিল, সচেতনতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে, তেওঁলোকৰ বা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি এটা সুন্দৰ কাম কৰিব লাগিছিল, হয়তো সিমানখিনি কৰা নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোগদান এই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত আমি পুতৌজনক বুলি ক'ব লাগিব। সেই যি নহওক, কিন্তু অসমৰ ছোৱালী বা অসমৰ যিখিনি ইউথ আছে, ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে কিন্তু ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে ভাল কাম কৰিছে। যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে এই গোটেই ইভেণ্টটো, এটা মেগা ক্ৰীড়া ইভেণ্টটোক
পৰিকল্পিতভাৱে কোনো ধৰণৰ খামখেয়ালি নোহোৱাকৈ যাতে পাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে কাম কৰিছে মোৰ সৈতে অসমীয়া কেইগৰাকীমান যুৱতী আছে অকণমান তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতোঁ প্ৰথমতে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল কাভাৰেজলৈ কেনেকুৱা লাগিছে এই ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰীড়া ইভেণ্ট ফ'ৰ্থ যিটো এই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ এইবাৰ অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ছাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মাস্কটো খুলিবা নেকি মুখখন ৰাইজে তেতিয়া ভালদৰে দেখিব ছাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খেলো ইণ্ডিয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ এজ এ ভলেণ্টিয়াৰ কোনে কোনে এতিয়া ক'বা যে এইবাৰ যিহেতু মই অকণমান য়াং ভোটাৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে দেশখন বদলাবা তোমালোকে পৰিৱৰ্তন আনিবা নতুন এটা দিগন্ত হ'ব এইবাৰ যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে কাৰ ভোটাধিকাৰ আছে ইয়াত কোনে কোনে ভোটাধিকাৰ পাইছে সব 18+ মানে 18+ এভৰিবডি তোমাৰ 18+ ভোটাধিকাৰ পাইছা নাই ভোট দিবা নে নিদিয়া দিবা তো কেনেকুৱা দেখিছা যে এই এতিয়া অকণমান যিহেতু তোমালোকে দেশখন পৰিৱৰ্তন কৰিবা কেনেকুৱা দেখিছা দেশৰ ৰাজনৈতিক বুলি ক'লে অকণমান আকৌ ভাবিবা যে ইমান ৰাজনৈতিক কথা তোমালোকে ক'ব নালাগে কেনেকুৱা দেখিছা মোদীৰ শাসনকালত হওক বা বিজেপিৰ শাসনকালত এতিয়া কেনেকুৱা দেখিছা দেশখন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে নাই বহুতেই ভাল হৈছে দেশখন এটা ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড হৈ আছে লাহে লাহে বহুত উন্নতি হৈ আছে জেগাই জেগাই ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে ট্ৰাফিকটো আমাৰ কম হৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া অকণমান ট্ৰাফিক হৈ আছে কিন্তু আমাৰ মানে ফিউচাৰত আমাৰ ভাল হ'ব যে ট্ৰাফিক লেছ হ'ব আমাৰ গুৱাহাটীখন আৰু বাকী জেগাতো বহুত উন্নতি কৰিয়ে আছে আমাৰ বিজেপিয়ে ভাল কৰিছে অঁ কংগ্ৰেছৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ একো ইমান ডিটেইলছত একো ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা দেখিছা দেশখন ভাল হৈ আছে নে বেয়া হৈ আছে কেনেকুৱা দেখিছা ভালে হৈ আছে কিন্তু এতিয়া মানে চব আধা হৈ আছে ন যেতিয়া গোটেই চব ভাল হৈ যাব তেতিয়া মানে ভালে হ'ব চাগে ভোট দিবা নিদিয়া এবাৰ দিম আৰু কাক দিবা মই নুসুধো আৰু ভোটটো জানা না এটা চিক্ৰেচি হয় গোপনীয়তা তুমি কাক দিবা সেইটো ক'ব নালাগে কিন্তু কেনেকুৱা কংগ্ৰেছে ভাল কাম কৰা নাছিল নেকি দেশত সেইটোতো গম নাপাওঁ কিয় মইতো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ভোট দিম ইমান মানে ঠিক আছে আৰু কোনে দিবা ভোট কিবা ক'বা দেশখন কেনে ভাল হৈ আছে নে বেয়া হৈ আছে ভাল হৈ আছে মানে আগতে যেনেকুৱা মানে সুবিধা নাছিল কংগ্ৰেছৰ টাইমত তেতিয়া অলপ সৰুও আছিলোঁ এতিয়া মানে ঠিক হৈ আছে যিখিনি আমি দেখি আছোঁ আৰু সেইখিনি কেনেকুৱা দেখিছা দেশখন ৰাজ্যখন ভালৰ দিশে গৈ আছে নে বেয়াৰ দিশে গৈ আছে হয় ভাল হৈ আছে বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে আৰু মানে ইমান বহুত ফেচিলিটিজবোৰ দি আছে আৰু বিজেপিৰ অহাৰ পৰা কংগ্ৰেছ নালাগে নেকি নহয় কংগ্ৰেছৰ ভালেই হয় এটা চাইডেদি বেয়া নকওঁ বাট বিজেপিয়েও বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছে কাৰাপশ্যন হোৱা নাই নেকি বিজেপিৰ দিনত কাৰাপশ্যন আমি যে কওঁ দুৰ্নীতি হৈ থাকে ৰাইজে সুবিধা নাপায় তেনেকুৱা তুমি কি দেখিছা असमीज नहीं आता है तो तुम कैसे देखते हो क्योंकि देखो उभरता हुआ एक भारत आ रहा है थोड़ा इधर आओ उभरता हुआ भारत आ रहा है तुम कैसे देखते हो थोड़ा कैमरा में देखो तुम कैसे देखते हो कि क्या हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है बीजेपी क्या कर रहा है आगे ही बढ़ रहा है लाइक डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है एंड बहुत सब कुछ UPI आ गया डिजिटली हो गया जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं था सो आई थिंक ये बीजेपी बहुत ज़रूरी है करप्शन नहीं हुआ है क्या बीजेपी के दिन में इतना कंपेयर टू कांग्रेस इतना भी नहीं हुआ है तो तुम्हें अच्छा लगता है मोदी आएगा तीसरे बार PM एज ए PM यस ज़रूर आना चाहिए हैट्रिक करेगा थैंक यू वेरी मच एवरीबडी আৰু এয়া আছিলে আমাৰ অসমৰ এইসকল যুৱতী তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দিছে ৰাজনৈতিক মন্তব্য দিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিহেতু এইসকল নতুন ভাৰতৰ নতুন ভোটাৰ আৰু এওঁলোকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট দিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে খেলা ধূলাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত এজ এ ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছে ভলীবলত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ মতামত ইয়াতে ব্যক্ত কৰিছে আমি নকওঁ কাক দিব লাগে কাক দিব নালাগে সেইটো নকওঁ কিন্তু আমি এই যিখিনি য়াং ভোটাৰ্ছ আছে 4500 প্লেয়াৰ্ছে এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিখিনি য়াং ভোটাৰ্ছে এইবাৰ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰে তাৰ ওপৰত আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আহক এবাৰ আমি পঞ্জাবৰ কিছু খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এইবাৰ বিচাৰিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কাৰণ পঞ্জাবত এতিয়া আপে শাসন কৰি আছে আৰু আপৰ শাসনকালত পঞ্জাবৰ কি হৈছে কেনেকুৱা তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন দেখিছে নে নাই এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এওঁলোক ইয়াতে বহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ইভেণ্টত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইভেণ্টত সৰু সজাত বিভিন্ন ইভেণ্ট হৈ আছে ইফালে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত বিভিন্ন ইভেণ্ট হৈ আছে সকলোতেই বেলেগ বেলেগ ইভেণ্টত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু এই
যিসকল এই চাৰিগৰাকী আমাৰ সৈতে पंजाबी খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে फेंसिंगত पार्टिसिपेट কৰিছে तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस स्पेशल कवरेज में तो कैसा महसूस कर रहे हो गुवाहाटी कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा सर मेज़बानी कैसा लग रहा है क्या हॉस्पिटलिटी कैसा लग रहा है बहुत अच्छी है बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने खाना पीना खाना भी बहुत अच्छा है रहना रहना भी बहुत अच्छा है प्रॉब्लम आर यू फेसिंग बहुत अच्छा किया इन्होंने सभी अरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया और हमें महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे एक क्या बोल जैसे घर में हो तो थोड़ा अभी पंजाब का माहौल बताओ पंजाब कैसा चल रहा है पंजाब में अभी आपका गवर्नमेंट चल रहा है वहाँ पे हाँ भगवान मन वहाँ पे भगवान मन ओके भगवंत मन मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है पंजाबी में कोई नहीं वो अभी चीफ मिनिस्टर है तो कैसा पंजाब आगे बढ़ रहा है जमा नहीं हाँ नहीं अभी अभी नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है आगे चल मान ने बहुत कुछ किया हमारे लिए खेल वतन में स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने जो वो प्रेरणा दे रहे हैं सबको कि हम स्पोर्ट्स में आए आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा उन्होंने ये मेरे को उनका बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने सूचना दी है सभी को कि वो नशे के तरफ मत जाए पंजाब वाले जो हैं वो गेम्स में लगें और अच्छा अपना आगे बढ़ते रहें वोट देते हो कि नहीं वोटिंग का किसका आया है वोटिंग अभी हमारा 18+ अभी हुए हैं हम मैं अभी नहीं हुए ये नहीं हुई नहीं तो आएगा फिर इस साल नहीं आने से इस बार नहीं आने से अगली बार आएगा तो देखो अभी ऐसा है कि अभी 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो मोदी इस बार फिर से वो बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कि 3 बार मोदी आएगा मोदी हैट्रिक करेगा तो देश का माहौल तुम्हें कैसा लग रहा है देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है अच्छा कर रहा है कि मोदी अच्छा नहीं कर रहा है कैसा लग रहा है महसूस कैसा है तुम्हारा अच्छा कर रहा है मोदी भी वो अच्छी स्पोर्ट्स में भी अच्छी अचीवमेंट दिखा रहे हैं वो हमारे लिए और हम भी उनको अच्छी अचीवमेंट दे रहे हैं तभी उन्होंने इतना कुछ किया हमारे स्पोर्ट्स के लिए ये भी खेलो इंडिया का सारा उन्हीं ने किया हुआ है ना तो अच्छा किया है सब तो पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था पंजाब में और भारत में भी कांग्रेस का सरकार था तो कैसा लग रहा है कि मोदी को अगर तुम मार्क्स देना चाहो तो 10 में से कितना मार्क्स दोगे बीजेपी को 8 दोगे तो इस बार लग रहा है क्या मोदी आएगा या कांग्रेस या दूसरा दल आएगा लग तो मोदी ही रहा है बाकी देखो पता नहीं अभी क्यों मोदी को क्यों पसंद करते हो क्यों क्या क्या तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि ये सब अच्छा काम किया ये किया डीमोनेटाइजेशन किया डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे निखारा है तो कैसा लग रहा है कि बीजेपी कौन कौन सी चीज़ों पे अच्छा काम कर रहा है मुझे मेनली तो इतना पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट मुझे स्पोर्ट्स का पता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अगर उनकी आगे उनका हाथ पकड़ा जा रहा है उनको सपोर्ट किया जा रहा है इसलिए तो आगे बढ़ रहे हैं वो ऐसे ही वो यंग जनरेशन्स को मोटिवेट कर रहे हैं उनको लेके कि अगर ये इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत कुछ किया है तो कांग्रेस का आने का चांस नहीं है क्या इस बार कांग्रेस या दूसरे दल का नहीं मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे लगता है कि मोदी को आ ही आएगा आप पंजाब में तो आप सरकार है तो आपका क्या दबाव रहेगा इस बार इलेक्शन में मेरा मोदी को मुझे लगता है आपका इतना होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रॉमिसेस थे पहले अब शायद नहीं है उन्होंने ही पूरे किए बाकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है वैसे मैंने जो सुना है वैसी बात कर दी अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है कोई नहीं अच्छी तरह से बोल रही हो तुम्हें क्या लगता है क्या देश में परिवर्तन का जो स्लोगान बीजेपी ने दिया था शुरू में कि हम चेंज करेंगे इंडिया को चेंज हो रहा है क्या इंडिया थोड़ा बहुत हो रहा है जैसे किस किस तुम अगर कुछ बताओ कुछ टॉपिक किस में चेंज दिख रहा है तुम्हें चेंजेस औरतों के लिए बहुत चेंज किया है भी जैसे बसों पर उनका किराया फ्री कर दिया है वो पंजाबी কুৰিজ আছে আমাৰ সৈতে पंजाबी কুৰিজ চাৰিগৰাকী पंजाबी কুৰিজ আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে কথা পাতি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা লৈছোঁ কিছু মন্তব্য কাৰণ আপৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাত আপে বৰ্তমান চৰকাৰ চলাই আছে পঞ্জাবত আৰু আপে এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'বই নাই নহ'ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ মাজত আসনৰ বুজাবুজি হৈছে
5খনকৈ ৰাজ্যৰ লগত এতিয়া আসনৰ বুজাবুজি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ এই দুয়োটা শক্তি একেলগে অৱতীৰ্ণ হ'ব কিন্তু এওঁলোকৰ ভাষ্যৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে মোদী মিজিকে কাম কৰিব আকৌ এবাৰ তৃতীয়বাৰ কাৰণে মোদীয়ে চৰকাৰ বনোৱাটো এইসকল পঞ্জাবী যিসকল নতুন वोटर्स से मते तेनेकुवा एटा कथा कब धरिसे। देखो लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि करप्शन नहीं हो रहा है क्या देश में, जो ऐसा बता रहा है कि मोदी बता रहा है कि देखो हम आगे बढ़ रहा है, सभी तुम लोग भी बता रहे हो आगे बढ़ रहा है, लेकिन करप्शन का इशू में क्या बोलते हो, करप्शन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है करप्शन हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? पता नहीं है तो मुझे कम हो रहा है शायद ना, कम आगे से कम है, आगे से बहुत फ़र्क पड़ चुका है अब तो, बाकी जितना उतना बता दिया। पंजाब में करप्शन हो रहा है कि नहीं? पंजाब में मुझे लगता है पहले से तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बाकी पहले थे सरकार तो उनका अलग सिस्टम था, अब अलग है, बट कहने को तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बताया जा रहा है कि अब बहुत कम हो गया है। सो यही है। महिला सुरक्षा में अच्छा काम कर रहा है बीजेपी, तुमने बताया था महिला के ऊपर अच्छा काम कर रहा है बीजेपी, है ना? तुम्हें ऐसा महसूस होता है? हाँ जी हो रहा है मुझे महसूस। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और अच्छी तरह से खेलो यहाँ पे और खेल के तुम लोग जीत के जाओ, यहाँ का जो पूरा माहौल का जो अनुभव है उसको साथ में लेके जाओ, यही हम चाहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं, हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी आई की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। অনুষ্ঠানত আজিলৈ সময় হৈ আহিল, আমি অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিব লাগিব আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ মাজেৰে যে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই বিশেষকৈ যিখিনি য়াং ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আচলতে কি বিচাৰে। সমাগত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এইসকল ভোটাৰ যিসকল ভোটাৰে এটা ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব এইবাৰৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, এই নিৰ্বাচনত যুৱ ভোটাৰসকলে প্ৰায় 65% ওপৰৰ যুৱ ভোটাৰ আৰু যুৱ ভোটাৰসকলে এক ডিচাইডিং ফেক্টৰ প্লে কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে দেশৰ এইসকল ভোটাৰেনো কি বিচাৰে, খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে, 4500 খেলুৱৈ আহিছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা, বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টিৰ তেওঁলোক একোজন ভোটাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কিছু সংখ্যকৰ, সকলোৱেতো এটা ইণ্টাৰভিউ লোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিছু সংখ্যকৰ আমি ইয়াতে দেখুৱালোঁ তেওঁলোকে কি বিচাৰে, জাত পাতৰ ৰাজনীতি বিচাৰে, তেওঁলোকে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ বিচাৰে নে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এখন নতুন ভাৰত বিচাৰে আগন্তুক 5টা বছৰত, তাৰে এটা স্পষ্ট ছবি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিখিনি মতামত, এই মতামতখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিব যে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে, বিজেপি, কংগ্ৰেছ নে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিবলৈ গৈ আছে। সি যি নহওক, এতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এইসকল যুৱ ভোটাৰেই ভৱিষ্যত ভাৰতৰ এক নতুন নক্সা তৈয়াৰ কৰিব। ভৱিষ্যত ভাৰতত কোন থাকিব ক্ষমতাত আগন্তুক 5 বছৰত এওঁলোকৰ ভোটাৰে সেয়া নিৰ্ণয় কৰা যাব। অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।